Hello everyone. So today we are going to discuss Unit 10, that is Basic Sentence Pattern. So what is, अगर ਆਪਾਂ sentence ਨੂੰ बनाना है तो थोड़ा main structure sentence का ਕੀ ਹੁੰਦਾ है? That is, a sentence in English usually names the subject of the sentence. ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ sentence ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, subject ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ predicate ਹੁੰਦਾ, मतलब ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ठीक है, that is the person or thing doing the action, ਜੋ ਕੰਮ person ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ subject, and then offers a comment or assertion about that subject, ठीक है, ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ठीक है, ਉਹ ਬਾਕੀ sentence ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ठीक है, ਉਹ ਬਾਕੀ comment ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ predicate, ठीक है। so sentence ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ subject, ਇੱਕ predicate, ਜਿਸ person ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, जो person action कर रहा है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ subject, ਉਹ ਕੀ action ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ predicate, ठीक है। in the sentence ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ he left, so he ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ subject, ਮੈਂ ਉਸ boy ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ sentence ਕੀ ਹੈ left मतलब ਇੱਕ predicate। और ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ subject ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ word ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ phrase ਜਾਂ clause ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸਭ ਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਰਬ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖੋ, ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਟੈਲਿਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਨ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਦ ਬੌਸ ਆਫ ਦ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਿਊ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਪਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਬਜੈਕਟ, left the elegantly furnished conference room, that means ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। दूसरा सब्जेक्ट है थोड़ा इटैलिक विच, वर्ब है मेन टेक्स्ट विच, बेबीज बारे गल कर रहे हैं, दैट इज योर सब्जेक्ट, की कर रहे हो रो रहे हैं, दैट इज योर वर्ब। सब्जेक्ट है थोड़ा इटैलिक विच, वर्ब है प्लेन, एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की विच है बोल्ड विच, जिवें मैनी पीपल, मैनी की हो गया थोड़ा, मैनी पीपल हो गया थोड़ा सब्जेक्ट, वीयर हो गया थोड़ा वर्ब, ते ग्लासेस हो गया थोड़ा ऑब्जेक्ट। एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, ठीक है। वो कह रहे कि हर सेंटेंस विच बेसिक सेंटेंस पैटर्न, कोई भी सेंटेंस आप लिखांगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਬ। ਵੈਨ ਅ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਇਨ ਰੈਗੂਲਰ ਔਰ ਅ ਨਾਰਮਲ ਆਰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਸਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਸੀਡਸ ਦ ਵਰਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋ ਵਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੌਨ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜੌਨ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਸਬਜੈਕਟ, ਇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਬ, ਮਤਲਬ ਵਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਬਜੈਕਟਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਵਨ ਸਬਜੈਕਟ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੈਕ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ, ਸੋ ਜੈਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ। एग्जाम्पल है स्यू एंड बैटी, दैट मीनस ये मैं दो सब्जेक्ट्स की गल की है, स्यू ते बैटी, जिन्हें बारे में गल कर रही हूँ। थर्ड है वर्ड और अ वर्ड ग्रुप, ठीक है, दैट मीनस की है की है करंट और गारंट फ्रेज, दैट मीनस एग्जाम्पल की है सिंगिंग इज अ गुड थेरेपी, ठीक है। सो ये की है सिंगिंग की गैरेंट है, दैट मीनस सिंगिंग विच इज अ गैरेंट इज अ सब्जेक्ट, ठीक है, जिहदे बारे आपां इहदे विच गल कर रहे हैं। नैक्सट है टॉकिंग विद माई सन्स इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, वो कह रहे कि अपने मुंडे बेटे नाल गल करना की है एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, डिफिकल्ट काम है, ठीक है। सो इहदे विच की है टॉकिंग विद माई सन्स की हो गया तुहाडा, इहदे विच किहदे बारे गल कर रहे हैं, सन्स नाल गल करनी है, दैट इज योर सब्जेक्ट, ठीक है। सो गैरेंट इज बेसिकली की हुंदा है वर्ब जिहदे विच जो एंड हुंदा तुहाडा आईएनजी नाल, ठीक है, उहनूं आपां गैरेंट वर्ड कहने आ, जो वर्ड तुहाडा आईएनजी दे विच हो गया सिंगिंग, इहदे विच हो गया तुहाडा टॉकिंग, दैट मीनस योर वर्ड विच एंडिंग विद आईएनजी, ठीक है, दैट इज योर ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਔਰ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਫਰੇਜ਼, ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੂ, टू ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, टू स्टडी इज योर जॉब, तो दो जो हो गया टू स्टडी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ है, इसलिए वो सब्जेक्ट बन गया। दूसरा, टू स्टडी इफेक्टिवली रिक्वायर्स डिसिप्लिन, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ है
टू स्टडी इफेक्टिवली, ठीक है, टू वर्ड लग गया जो कि इन्फिनेटिव फ्रेज है, ये भी कि तुहाडा बन गया सब्जेक्ट। नैक्सट कम्स योर वर्ब्स, इहदे विच की आंदा एक सिंगल वन वर्ब, दैट इज टेरिसा मेक्स मी एंग्री। सो टेरिसा की हो गया इहदे विच वर्ब, टेरिसा हो गया तुहाडा सब्जेक्ट, मेक्स की हो गया तुहाडा वर्ब, ठीक है। जो आप देखांगे पिछे आप पढ़िया किन्ने किन्ने तुहाडे इहदे विच किन्ने किन्ने सब्जेक्ट ने, हुण आप पढ़ांगे एक सेंटेंस विच किन्ने किन्ने वर्ब है। इहदे विच मेक्स की हो गया तुहाडा एक वर्ब है। कंपाउंड वर्ब मतलब दो या दो तो वध, ठीक है। जेरी रेंटेड अ कार एंड ड्रोव टू डेलास, दैट मीन्स रेंटेड ते ड्रोव दो वर्ब्स हो गए। थर्ड आंदा तुहाडा वर्ब फ्रेज टू और मोर वर्ब्स दैट वर्क्स एज अ यूनिट, दो या दो तो वध वर्ब्स जो एज अ एक यूनिट काम कर रहे हैं, ठीक है। सो द लास्ट वर्ब इज ऑलवेज द मेन वर्ब, सो देयर मे बी वन और मोर हेल्पिंग वर्ब्स दैट प्रीसीड द मेन वर्ब, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इहदे विच जो लास्ट वर्ब होंदा मेन वर्ब होंदा है, तो इहदे विच एक या एक तो बाद भी वर्ब्स हो सकते हैं जो कि मेन वर्ब तो पहला आते हैं, ठीक है। जो भी मेन वर्ब होगा उस तो पहला जो भी थोड़े हेल्पिंग वर्ब हो गया, हैज़ इज हो गए, थोड़े की आते हैं मेन वर्ब तो पहला, दैट इज प्रीसीड। वर्ब फ्रेज दैट मीन्स टू और मोर वर्ब्स दैट वर्क एज अ यूनिट, ठीक है। दैट मीन्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि इहदे विच दो या दो तो वध वर्ब होंदे जो कि पहला आते हैं, जिवें एग्जाम्पल Sue has been invited to my house, तो has been की हो गया तुहाडा वर्ब फ्रेज, इनवाइटेड की हो गया तुहाडा मेन वर्ब, ठीक है। हैज़ ते बीन की थोड़े एज अ हेल्पर काम कर रहे हैं, दोनों हैज़ बीन तो हेल्पर काम कर रहे हैं। इनवाइटेड तुहाडा मेन वर्ब है। कंपाउंड वर्ब फ्रेज दैट मीन्स टू और मोर वर्ब फ्रेजेस, जिवें Helen has moved to Dallas and is working at Walker, ठीक है। दैट मीन्स हैज़ मूव्ड किया है एंड इज वर्किंग आर द वर्ब फ्रेजेस। मूव्ड किया गया, मूव्ड ए वाला एंड वर्किंग आर मेन वर्ब्स, तो वर्किंग मेन वर्ब्स ने, हैज़ से इस थोड़े की आगे हेल्पर्स आ गए। नेक्स्ट स्टेप्स इन आइडेंटिफाइंग बेसिक सेंटेंस पैटर्न, ठीक है। आइडेंटिफाई करने वास्ते बेसिक सेंटेंस पैटर्न जो आइडेंटिफाई करना की करेंगे आप पहले विच, पहली चीज़ है सब्जेक्ट, दैट मीन्स एक्शन वर्ब, एक्शन की हो रही है। थॉमस वर्क्स फॉर अमेरिकन एयरलाइंस, दैट मीन्स एक्शन वर्ब की है, काम कर रहे हैं वर्क। नेक्स्ट है थोड़ा सब्जेक्ट की है थॉमस, एक्शन वर्ब है वर्क्स। नेक्स्ट सब्जेक्ट एक्शन वर्ब ते डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की है शीला, सोल्ड की है वो थोड़ा वर्ब एंड हाउस की हो गया थोड़ा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सब्जेक्ट नॉन एक्शन वर्ब ते कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स थोड़ा जो थोड़े मेन वर्ब में एज अ कॉम्प्लीमेंट सपोर्ट कर रहा सेंटेंस, ठीक है। एग्जाम्पल की है द ड्रेस इज प्रिटी, ड्रेस की है सब्जेक्ट, इज की है थोड़ा वर्ब ते प्रिटी हो गया, इनू कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट कर, दैट इज योर ड्रेस। नेक्स्ट थ्रू ऑल माई ट्रायल्स जोलिंडा रिमेन्स माई फ्रेंड, ठीक है। सो जोलिंडा की हो गया थोड़ा सब्जेक्ट, रिमेन्स योर नॉन एक्शन वर्ब, कुछ काम नहीं हो रहा, जस्ट थोड़ा सा हेल्पिंग काम कर रहा है, ये कोई एक्शन नहीं हो रहा, इज कोई एक्शन नहीं, थोड़ा हेल्प कर रहा है, ठीक है। सो नॉन एक्शन वर्ब है, कॉम्प्लीमेंट किया एज माई फ्रेंड। नेक्स्ट स्टेप की स्टेप 1 प्लेस parenthesis around all prepositional phrase। स्टेप 2 आइडेंटिफाई द वर्ब, ठीक है, वर्ब आइडेंटिफाई करना है। थर्ड क्लासीफाई द वर्ब एज एक्शन की नॉन एक्शन वर्ब है, वो देखेंगे आप। अगर वर्ब नॉन एक्शन वर्ब है, ठीक है, सो एग्जाम्पल की है जैक इज पोलाइट, ठीक है। सो जो पोलाइट की है वो की है कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि क्वालिटी दस रहे कि वो एडजेक्टिव दस रहे कि की कर रहा हो शांत रहंदे, वो क्वालिटी दस रहे। एग्जाम्पल एस्ट्राडा इज माई सन, तो सन की है थोड़ा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है प्रेडिकेट नो, ठीक है। सो दैट मीन्स की है सन कुछ वर्क नहीं हो रहा, तो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। इफ द वर्ब इज एन एक्शन वर्ब, ठीक है, पेन पैटर्न 1 2 और 3, ठीक है। फिर आप फर्स्ट 3 पैटर्न यूज करने हैं। आज एक्शन वर्ब द क्वेश्चन व्हाट और whom, एंड इफ नो आंसर पैटर्न 1 आइडेंटिफाई करांगे, ठीक है। आप देखो डिफरेंट पैटर्न्स पढ़ांगे सेंटेंस दे,
कि किन्नी की सेंटेंस हो सकती है, ठीक है। सो फर्स्ट सेंटेंस आंदा थोड़ा NP1 VB प्लस ADB TP, ठीक है। बेसिकली की है NP1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾउन फ्रेज भी कह सकते हैं या ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ कि ये सब्जेक्ट है। V stands for verb of being and ADB stands for adjective of time or place, TP टाइम या place गल कर रहा है। सो पहली अगर सेंटेंस बन इदां दा होएगा सानू पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट की है, वर्ब की है, एडजेक्टिव की गल कर रहे हैं कि आप एडवर्ब की गल कर रहे हैं। ADB स्टैंड्स फॉर एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस, ठीक है। सो पहला पैटर्न की कहता है, अगर मैं एग्जांपल बोला माई फ्रेंड्स आर हेयर, ठीक है। सो माई फ्रेंड्स की हो गया थोड़ा ये सब्जेक्ट जिन्होंने आप NP1 बोलांगे, आर हो गया थोड़ा वर्ब एंड ADB एडवर्ब हो गया। मैं की बोले है माई फ्रेंड्स आर हेयर, तो हेयर की हो गया योर एडवर्ब ऑफ प्लेस। दैट मीन्स ये तुहानू आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाएगा कि कितना दा सेंटेंस पैटर्न है। दूसरा है NP1 वर्ब ऑफ बीइंग प्लस ये आएगा एडजेक्टिव, ठीक है। दैट मीन्स आप किसी की क्वालिटी दस रहे हैं, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल लीए जिमें His clear tenor voice was quite lovely, ठीक है। जिमें नाउन फ्रेज की वॉइस, ठीक है, वो वॉइस की गल कर रही है मैं, वो हो गया। वॉस की हो गई तो वर्ब, एडजेक्टिव की हो गया लवली, ठीक है। सो दैट मीनस जो एडजेक्टिव है थोड़े सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, सब्जेक्ट नू कंप्लीट कर रहा है, आप कहने एडजेक्टिव लास्ट विच, ठीक है। थर्ड आ गया द एक्शन वर्ब इज फॉलोड बाय अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो द सेकेंड NPV की है वो थोड़ा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तुहानू दसेगा, ठीक है। सो वो की है इनू NP2 असी क्यों बोले, बिकॉज ए सेम एज अ सब्जेक्ट, सॉरी ये NP1 प्लस वर्ब प्लस NP1, दैट मीन्स द वर्ब ऑफ बीइंग इज फॉलोड बाय अ नाउन दैट फंक्शंस एज अ सबजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जो इनू कंप्लीट कर रहा है उन्होंने आप फिर लिखांगे NP1। अगर एग्जाम्पल है मिस्टर जेम्स, अगर मैं बोला हैज़ बीन अ टीचर फॉर 40 ईयर्स, ठीक है। मिस्टर जेम्स की हो गया थोड़ा सब्जेक्ट, हैज़ बीन की हो सकता थोड़ा ये वर्ब, ते की है टीचर जो रहा है, ठीक है, इनू कंप्लीट कर रहा है, इस सब्जेक्ट नू कंप्लीट कर रहा है, दैट इज योर टीचर, तो आप लिखांगे NP1। नेक्स्ट NP1 प्लस लिंक, LV स्टैंड्स फॉर लिंकिंग वर्ब ते प्लस एडजेक्टिव, ठीक है। दैट मीन्स जो लिंकिंग वर्ब है, जिमें एग्जाम्पल द केक ऑन द टेबल लुक्स डिलीशियस, ठीक है। वो कह रहे हैं जो केक है, ठीक है, द केक की हो गया थोड़ा, केक हो गया थोड़ा सब्जेक्ट, लुक्स दैट इज योर लिंकिंग वर्ब, ये दो सेंटेंस नू लिंक कर रहे हैं, ठीक है। एंड डिलीशियस की हो गया थोड़ा एडजेक्टिव, आप क्वालिटी दस रहे हैं। फिफ्थ सेंटेंस NP1 लिंकिंग वर्ब ते फिर NP1, ठीक है। दैट मीन्स आप फिर लिंकिंग वर्ब नू उस चीज़ नू कंप्लीट करेगा, जिमें जॉन बिकेम अ बुद्धिस्ट, ठीक है। दैट मीन्स जॉन की हो गया थोड़ा सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब की हो गया थोड़ा बिकेम एंड बुद्धिस्ट, दैट मीन्स इनू कंप्लीट कर रहा है, वो हो गया थोड़ा NP1। दैट मीन्स सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ये सब्जेक्ट नू कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट कर रहा है। नेक्स्ट NP1 V, दैट मीन्स एक्शन वर्ब टेक्स नो, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, ठीक है। सो इफ द एक्शन वर्ब इज फॉलोड बाय अ प्रपोजिशनल फ्रेज द वर्ब इज स्टिल इंट्रांसिटिव। इंट्रांसिटिव का मतलब होंगे ऐसे वर्ब जिन्होंने ऑब्जेक्ट की लोड़ नहीं पैंदी, इंट्रांसिटिव वर्ब वो होंगे जिन्होंने ऑब्जेक्ट की लोड़ पैंदी है, ठीक है। सो द एक्शन वर्ब टेक्स नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो अगर मैं एग्जाम्पल लवा इन अ फ्यू वीक्स माई कजन विल अराइव, दैट मीन्स कजन हो गया थोड़ा सब्जेक्ट, अराइव हो गया थोड़ा वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट NP1 प्लस V प्लस NP2, ठीक है। दैट मीन्स ये की है NP2 का मतलब है द डायरेक्ट एक्शन वर्ब इज फॉलोड बाय अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट होएगा, ठीक है। दैट इज योर NP2, ठीक है। अगर एग्जाम्पल है आप द आर्किटेक्ट शूट एन एरर इन द
टारगेट, ठीक है। सो आर्कीटेक्ट जो है दैट इज योर सब्जेक्ट, शूट जो हो गया ਤੁਹਾਡਾ हो गया वर्ब, ਤੇ एरो की हो गया ਤੁਹਾਡਾ ऑब्जेक्ट की ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एरो, ठीक है। नेक्स्ट NP1 प्लस वर्ब प्लस NP2 प्लस NP3, ठीक है। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ आएगा, एक्शन वर्ब जो है, ठीक है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दैट इज वाई ਆਪਾਂ NP1 NP2 ਤੇ NP3 तीनों चीज़ लिखिया ने। जिवें स्मिथ गेव द एम्प्लॉयज़ अ रेज, ठीक है। सो स्मिथ की है ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, गेव की हो गया ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ वर्ब, एम्प्लॉयज़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, रेज ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ठीक है। दैट मीनस ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ प्रमोशन ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट सेम है NP1 प्लस वर्ब प्लस NP2 प्लस एडजेक्टिव, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, एडजेक्टिव एक्शन वर्ब जो है किवें किवें फॉलो कर रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो रहा है, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर एक एडजेक्टिव नाल फॉलो हो रहा है, ठीक है। सो जो ये एडजेक्टिव होएगा ये ऑब्जेक्ट नू कंप्लीट करेगा, ठीक है। सो एग्जाम्पल अगर आप देखिए, द जूरी फाउंड द डिफेंडेंट गिल्टी, ठीक है। NP1 की है जूरी, डिफेंडेंट की ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड जूरी की ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सॉरी गिल्टी की ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एडजेक्टिव, उन्होंने की होया दैट इज योर एडजेक्टिव। लास्ट कम्स NP1 वर्ब प्लस NP2 प्लस NP2, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ की है, द डायरेक्ट एक्शन इज फॉलोड बाय अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्शन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो रहा है, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो फॉलोड बाय अ नाउन फंक्शनिंग एज एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। वो कह रहे हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसके अगे की हो रहा है, नाउन फॉलो कर रहे जो कि एज अ ऑब्जेक्ट नु कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो द सेकेंड NP द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है रिसीव्स अ डिफरेंट न्यूमेरिकल डिजिग्नेशन बिकॉज इट इज़ नॉट द सेम एज अ सब्जेक्ट। कहते ये जो NP2 है वो ये वर्गा सेम नहीं है, इसलिए आप NP2 दिता है, जो कि नेक्स्ट जो है होएगा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो NP2 दूसरे वाला जो है ये इनू कंप्लीट करेगा, ठीक है। जिवें एग्जाम्पल रही आप, मोस्ट पीपल कंसिडर जेकॉब अ लॉयल फ्रेंड, ठीक है। सो मोस्ट पीपल की हो गया थोड़ा सब्जेक्ट, ठीक है। कंसिडर हो गया थोड़ा वर्ब, जेकॉब की हो गया थोड़ा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। किन्नों और लॉयल मनते ने, फ्रेंड लॉयल मनते, ठीक है। सो इनू कंप्लीट कौन कर रहा है, ऑब्जेक्ट नू कंप्लीट जो कर रहा है वो है थोड़ा फ्रेंड, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक 10 पैटर्नस, सानू पता होना चाहिए। ये 10 पैटर्नस एग्जाम में यूजली आइडेंटिफाई करने आ सकते हैं कि किहड़ा ਆਪਾਂ सेंटेंस पैटर्न दे विच यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो ये 10 पैटर्नस ने सेंटेंस विच यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस कि किहड़ा सब्जेक्ट है, किहड़ा ऑब्जेक्ट है, किहड़ा वर्ब है, किहड़ा ऑब्जेक्ट किस नू कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, या सब्जेक्ट नू कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, या ऑब्जेक्ट नू कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट हो रहा है। दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स। थैंक यू।